improvement start within 2 to 3 weeks and then gradually improves over a period. Improvement start within 2 to 3 weeks after the onset of symptoms Till it gets plateaus, then or after the plateau? नहीं, इम्प्रूवमेंट कब शुरू होगी? 28 दिन के अंदर या 28 दिन के बाद? 28 दिन के बाद. के बाद. और उसके बाद? So usually every variety has different prognosis depending upon. So which variety has good prognosis? Demyelinating. It has good prognosis. And which variety has bad prognosis? So axonal variety has like. कैसे पता चलता है? The EMG. ये नर्व कनेक्ट EMG allows that. नहीं, टेस्ट इकट्ठे होता है लेकिन इन दोनों में फिर सीन भी है ना. एक चीज मसल्स. So EMG. Confirm. MPS to connection study. Okay, so what is the usual outcome after, let's say, 6 months? So usually patients get fully recovered. 100%? But sometimes there can be residual weakness and chronic fatigue can be. Is there any role of plasmapheresis in the management of GBS? क्या है? So plasmapheresis improves the. I mean, If there is what no are the risk benefit between plasmapheresis and IVIGs? IVIG is better. Better? In what sense? The easy availability. वो तो सिर्फ लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और तो पाकिस्तान में कहीं नहीं है इजी अवेलेबिलिटी. ये तो इवन दुकानों पे नहीं मिलता. It's not available in the medical stores. Affordability. Plasmapheresis. ये इजी है, ये इसका प्लस पॉइंट है कि अफोर्डेबल चीज़ है. IVIG expensive. So IVIGs are too expensive. First thing, not easily available everywhere, even in the market. Private market में भी ऐसे नहीं है कि आप जिस स्टोर पे जाएं जाके IVIG ले लें. Selected जगहों पे available है. और क्या? The side effects. What are the side effects? What I want to listen. IVIG. IVIG के. Aseptic meningitis. So acute side effects includes aseptic meningitis, of course, anaphylaxis, hypertension, or long-term side effect. प्लाज्माफेरेसिस कैसे बनता है? कोई फैक्ट्री है प्लाज्माफेरेसिस बनाने की चाइना में लगी हुई? कहाँ पे बनता है? Plasma exchange. प्लाज्मा एक्सचेंज से? ये पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं. प्लाज्मा जो IVIG लगता है वो कैसे बनता है? एनी रेजिडेंट? हाँ, एक आवाज आई है किसी और डोनर से. यानी कहाँ से बनता है? केमिकल है, फैक्ट्री में बनता है, ब्लड से बनता है. इट्स अ ह्यूमन प्रोडक्ट. जैसे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और ब्लड ह्यूमन का निकालते हैं, उसको किसी को आरबीसीज, पैक्ड आरबीसीज दे रहे हैं, किसी को प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट दे रहे हैं, किसी को एल्ब्यूमिन दे रहे हैं, तो इसी तरीके से IVIG भी बनते हैं. इट्स अ स्पेसिफिक यूनिट जहाँ पे ये बनता है. तो मतलब क्या हुआ कि इट्स अ ह्यूमन प्रोडक्ट. Still in 21st century, it's not manufactured anywhere in the factory. तो ह्यूमन प्रोडक्ट से जितने साइड इफेक्ट्स ब्लड के हैं, जितने एल्ब्यूमिन के हैं, वो सारे इसके भी हैं. वो क्या क्या है? Transmission of infections. Exactly, transmission of infection. Though it is thoroughly screened for hepatitis B, C, and maybe many more, HIV, syphilis, etc. However, still there is a chance for infection because 30 years back, because of the transfusion, in some of the patients, there was a chronic hepatitis which is labeled or considered as non-A, non-B. क्यों? 20-30 साल पहले किसी को C, D, E का पता ही नहीं था, तो उसको कहते थे non-A, non-B, कि ना ये A है ना B है, पता नहीं कौन सा है, क्योंकि उस वक्त स्क्रीनिंग भी नहीं थी. 20 साल पहले, बहुत पुरानी बात तो नहीं है. इट वॉज स्टार्ट ऑफ अवर कैरियर. तो उसमें फिर ये non-A, non-B कहलवाता था. बाद में बहरहाल उनका पता चल गया. तो इसी तरीके से 20 साल बाद हो सकता है 5-7 किस्म के और वायरस निकल आए. सो द बिगेस्ट रिस्क
in the human products including IVIG is chronic infection, जो 10 साल बाद 20 साल बाद होगा और किसी को नहीं पता होगा कि किसने किसको कब प्लाज्मा दिया, IVIG दिया और व्हाट नॉट। और हाँ, एक्यूट में वो आ गया। सो प्लाज्मा एक्सचेंज जो है वो कैसे करते हैं? प्लाज्मा फ्रीसिस जो है वो यहाँ होता है? हमारे हॉस्पिटल में तो नहीं होता, हो सकता है, हो सकता है, कैसे? तो बेसिकली प्लाज्मा एक्सचेंज ही है ना, एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट प्लाज्मा एक्सचेंज। Machines. It's basically the equipment is already on board, or inshallah very soon we'll be able to perform plasmapheresis in many children of GBS and other immune mediated disorders. In this day and age, 20 years back इसको प्लाज्मा से ही किया जाता था, but now प्लाज्मा की भी ज़रूरत नहीं रहेगी. So it is perhaps more easy and cost effective in the sense कि we need only a kit. जो हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में एक मशीन है जिसको कहते हैं सेल सेपरेटर, जिसमें ब्लड में से आप प्लाज्मा को अलग कर सकते हैं, एल्ब्यूमिन को अलग कर सकते हैं, आरबीसी को, प्लेटलेट्स को, व्हाट नॉट, जो भी वो बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, उसी सिस्टम पे विद अ डिफरेंट किट प्लाज्मा फ्रेसिस इन बच्चों का विद जीबीएस एंड अदर इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर्स लाइक माइस्थेनिया एटसेट्रा वो किया जा सकता है. सो वेरी सून, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. चलो ठीक है, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया. नेक्स्ट केस बुलाएं. सो रुबाब ने कैसा किया है? रेजिडेंट अच्छा किया. देखो सारे अच्छा हम कहते जाएंगे ना. वो 25-30 साल पहले एक सीनियर हमारे डॉक्टर साहब थे, वो कह रहे थे कि जिस दिन अच्छा सारे कहते रहे ना, उस दिन आपकी लर्निंग कम होगी. लेकिन जिस दिन आप पे क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो और आपको पॉइंट्स आपके बताए जाएं कि यहाँ पे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट मौजूद है, तो प्रैक्टिकली लर्निंग आपकी तब होगी. अच्छा तो किया, लेकिन उसको आप बताएं, सारे गाइड करें. अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने पिक नहीं किया, शुमाइला ने किया है, शैला ने किया है, या डॉक्टर फरा बैठी हैं, डॉक्टर फरा भी कमेंट कर सकती हैं कि कोई ऐसा पॉइंट जो आप समझती हैं जिसमें रुबाब, क्योंकि आज जितनी भी बातें हम बताएंगे आपके फ़ायदे में, क्योंकि आज स्कोरिंग नहीं हो रही, रिजल्ट नहीं निकला आज, तो इसलिए आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं. और कौन है डॉक्टर शेख? ना वार्ड में कौन है? वार्ड खाली छोड़ा है. इमरान आ गया. He is 1-year-old male who presented with difficulty in walking. Same command for last few days. Do the motor and relevant. Okay, do only the lower limb examination. Sirf lower limb. अच्छा बच्चा है, रोज शुक्र सोया भाई.
तो चलो वॉल्यूम करेंगे रिलेटेड करते कहाँ से वॉल्यूम की वॉल्यूम पे कर लिया Negative by 50 and about fundus is normal. Okay, describe your findings. My examination, a patient has hypotonia of both lower limbs with reflexes of the deep tendon reflexes and superficial reflexes are present and with no obvious signs of any cranial involvement, and planters are down by left. Is the patient able to stand? I tried to make the patient sit first and then to stand, but patient didn't try to even sit. And although patient is sit with support. Okay, it means there is no positive finding in this patient. You want to say? Hypotonia generalized in the both lower limbs. There is hypotonia on the Of both limbs, of both lower limbs. Of both. Okay. So what is your differential diagnosis? On my findings, I would like to muscular dystrophy on my as a differential diagnosis as 1 year of age with hypotonia. So I would like, and then maybe इसको जरा दोबारा लेते हैं. Okay. And muscular dystrophy and late onset juvenile late onset type 3 SMA would be my differential. Have you seen the tongue fasciculations in this patient? एक साल का बच्चा है, एक साल में आप लेट आपको Type 3, usually 1 year above. Reflexes are released. दोबारा करें reflexes. कुछ चीज़ें फंडामेंटल होती हैं, जिस तरह वो होती है ना नॉक डाउन इवेंट होता है किसी गेम में या कंपल्सरी क्वेश्चन होता है किसी एग्जाम में, यानी कि वो चीज़ अगर आप मिस कर देंगे तो फिर एग्जामिनर जो है वो आपको पास नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। वो कि कॉलेज हमें की देता है, लेकिन वो इतना बड़ा एक ब्लंडर होता है कि उसके बाद फिर एक तो आपका इंप्रेशन ख़त्म हो जाता है। वो एग्जामिनर ये सोचता है कि जिसको ये नहीं पता तो ये कैसे क्वालिफाई कर सकता है या इसको क्या क्वालिफाई करना चाहिए, या जिस तरह सीनियर्स कहते हैं कि वी वांट टू प्रोड्यूस अ सेफ कंसल्टेंट। डॉक्टर फरा और हमारे कॉमन उस्ताद थे साजिद मकबूल साहब, वो कहते होते थे कि हमारा एक ही टारगेट होता है कि इज ही अ सेफ कंसल्टेंट फॉर चिल्ड्रन। तो अगर एक बंदा एक इतना बड़ा, चलें यहाँ पे आप ट्रीटमेंट की भी हम बात नहीं करें, हम आप ठीक डायग्नोसिस करेंगे तो ठीक ट्रीटमेंट करेंगे, अगर रॉन्ग फाइंडिंग, रॉन्ग डायग्नोसिस, रॉन्ग ट्रीटमेंट तो फिर सेफ तो ना हुआ। तो देयर आर टू मेनी ब्लंडर्स इन योर डिस्क्रिप्शन, इन योर एवेल्युएशन, इन दी, और आपका भी टाइम भी पड़ा हुआ था। पहला ब्लंडर तो देखिए ना यही हो गया कि आपके पास 5 मिनट हैं, आप उसमें मैक्सिमम चीज़ें देखिए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले लें। याद रखें इसका क्रेडिट कोई नहीं है, आप कहें जी मैंने तो 3 मिनट में केस ख़त्म कर लिया, नो क्रेडिट। रादर इंप्रेशन ये होगा कि डॉक्टर साहब के पास करने को कुछ है ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं आ रही मैंने करना क्या है। इट्स अ डिस्क्रेडिट, ठीक है ना। इट्स मीन्स कि आपने 1 साल के बच्चे अभी तक बहुत ज़्यादा एग्जामिन नहीं किए। फर्स्ट इंप्रेशन जो शॉर्ट केस में एग्जामिनर ले रहा होता है ना, लॉन्ग केस होते हैं 40 मिनट, एग्जामिनर चाय भी पी रहा है, इधर उधर भी देख रहा है, लेकिन 5 मिनट में कोई चांस नहीं है। आपकी एक एक मैन्यूवर्स नोट हो रहा होता है, आपने हैमर कैसे पकड़ा हुआ है, आपका करने का तरीका ठीक है, ये सब चीज़ें नोट हो रही होती हैं। उसके बाद फिर रिफ्लेक्स, डॉक्टर फरा कह रही हैं कि ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस हैं या वेरी इजीली इलिसिटेबल रिफ्लेक्सेस हैं, तो इसका मतलब है न्यूरोमस्कुलर तो ऑलमोस्ट आउट होता बन रहा है यहाँ से देख के। आप SMA टाइप 3 कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी इस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है।
मायोपैथी, फिर वही बात के रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क हैं। वैसे तो शैला को मैंने दिया था, शैला ही शुरू करी। Okay, what about his ankle reflexes of both lower limbs? Ankle आपको दुखस्त लग रहा है? It is very difficult to listen. इसको जरा चला के दिखाइए, इस काउच को चला के दिखाइए। चलिए, बेशक नीचे नीचे चला के दिखाइए। आपको इसीलिए शॉट किस नहीं देता हमें लॉन्ग अच्छा खड़ा और खड़ा के डाउन से टू वाला हाँ, चला के दिखाइए जरा। सही है था कुछ नोट कर रहे हैं आप? इधर सामने आए, सामने भी ये सामने से देखते हैं। आप सामने से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो चीज़ आपने मिस की है कितनी है। चला के दिखाओ। ये नॉर्मलिटी है। राइट ठीक है। राइट थिंग को क्या कर रहे हैं? क्यों गैप कर रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? Hemiplegic gait in the form of dragging of the foot. ठीक है, अगर हेमीप्लीजिया था, ड्रैगिंग थी, तो टोन कैसी होनी चाहिए? Tone must be increased and the signs of the upper motor neuron. ठीक है, तो अपर मोटर न्यूरॉन के साइन आ रहे हैं। टोन इंक्रीज है, डिस्क रिफ्लेक्सेस है, प्लांटर अपींग। Plantar एनी अदर रेजिडेंट किसी और ने पिक किया है? बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस ऑफ व्हाट साइड? राइट साइड। विच नर्व इज डैमेज्ड? sciatic nerve. Which part is damaged? प्रोनिया कॉमन प्रोनिया हो जाए। आप सब लोग ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस देखते हैं ना अपने नॉर्मल ओपीडी में, तो क्या 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 क्वेश्चनिंग करते हैं और आपके माइंड में क्या होता है? कौन सी नर्व? ठीक है, sciatic nerve डैमेज है। विच पार्ट इज डैमेज? कितने पार्ट्स होते हैं? टीबीएल कॉमन प्रोनिया पेरोनियल पार्ट होता है, टिबियल। ठीक है, तो विच पार्ट इज डैमेज? प्रोनिया टिबियल पार्ट इज डैमेज। ठीक है, तो अब बताएं आपका डिफरेंशियल क्या है? traumatic neuritis ठीक है, ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस and maybe monoplegia in which patient has hemiplegic gait with one limb weakness. ठीक है, एक्यूट स्टेट में हो सकता है, वेरी एक्यूट स्टेट। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंशियल, कैन इट बी अ केस ऑफ पोलियोमाइलाइटिस? With reflexive hypertonia and reflexive down. देखिए एक लिम्ब इन्वॉल्व है, एक लिम्ब इन्वॉल्व है। अब हमें ये नहीं पता कि एक्यूट स्टेट है, वेरी एक्यूट स्टेट है और क्रॉनिक स्टेट है। अगर मैं कहूँ कि एक्यूट स्टेट है, Then it could be initially in which the reflexes are exaggerated and then late as the disease progresses then the reflexes will start diminishing and sensations. okay, how will you investigate this case? Ma'am, in this case, EMG and nerve conduction studies are the diagnostic in keeping in mind the potential of the first traumatic neuritis, in which there will be a delayed conduction along the sciatic nerve, especially in the tibial part. Okay, how much time it will require to recover? Weeks, months, days, hours? Any idea? Months. Okay. What about poliomyelitis? If it could be a case of poliomyelitis, how will you investigate? And then we would like to collect stool samples, 24 as a part for detection of the poliovirus, as well as nerve conduction and other EMGs can also be performed to rule out mimicking disorders like poliomielitis and other investigations like throat swab application for culture of the viral culture of poliomielitis. Okay. About what amount of stool should be collected for detection of poliovirus? It's collected in a special container for safe transportation to the laboratory, and the two samples are generally required 24 hours apart to confirm the diagnosis of the poliovirus. Okay. I have asked about the amount of the stool. 1 kg, 2 kg, how much stool is required? Anyone? 10 ग्राम 8 to 10 ग्राम। ठीक है, अब आप उसको वे तो नहीं ना कर सकते स्टूल को, तो मदर को क्या बताएंगे?
about the size of her thumb. ठीक है, at what temperature? 80 centigrade. अगर आपको कमांड मिली है इवन इफ द लोअर लिप एग्जामिनेशन, ठीक है, 1 year old चाइल्ड में वैसे आपको बता रहे हैं इन एग्जाम जो FCPS 1 का एग्जाम है आपको वॉकिंग डिफिकल्टी की कमांड नहीं मिलेगी, स्पेशली व्हेन द मदर इज सेइंग द चाइल्ड कैन नॉट वॉक, ठीक है, आपने उसको वॉक से नहीं चला। अगर वॉक में आपको नहीं फ़र्क पता चल रहा तो भी आपने एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, एनीबडी जो पॉइंट्स इन्होंने मिस किए हैं, अगर एग्जामिन द लोअर लिम्ब की भी कमांड है तो लोअर लिम्ब के अलावा आपको क्या कहना चाहिए? अच्छा, आपने ऑफर किया ब्लड प्रेशर में चाइल्ड, व्हाई? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? monocytic involvement regarding to CVS and blood pressure will be higher. नहीं बेटा, यही तो देखना है ना कि इसकी मोनोफेजिक इन्वॉल्वमेंट क्या CVA की वजह से हमें लग रही है, और अगर आपको लग रही है तो बट एल्स टू एग्जामिन। एग्जाम में ना 1 + 1 = 2 करना होता है, ऐसे नहीं है कि ये एग्जामिन कर दिया था मैंने न्यूरोलॉजी में देख लिया था रात के टाइम ये ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस है, यहाँ काफ़ी लोग बोले हैं किसे ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस है, क्या एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन के ऊपर आप इसका ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस नंबर 1 डिफरेंशियल बना सकते हैं। हाँ, अगर देखो ना ये बच्चा जो है उसने एक बेटर डायग्नोसिस बनाया, ठीक है, उसके लिए भी ये एग्जामिनेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं था। अगर ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस आपने बनाना था बच्चे तो और क्या एग्जामिन हमें करना चाहिए था? देखो एग्जाम में एक अप्रोच देखी जाती है, नॉट द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में भी रॉन्ग, द अप्रोच शुड बी करेक्ट, ठीक है ना। अगर ट्रांसवर्स मेलाइटिस आपने बनाना तो क्या और करना चाहिए? बैक तो देखना चाहिए, ब्लडर इन्वॉल्वमेंट, स्पाइन देखनी चाहिए, ब्लैडर देखनी चाहिए, विच वाज हेरिडिटरी इन दिस चाइल्ड। आपको इसका क्या करना चाहिए था? सर पर खुलवा के या जो भी है लेफ्ट नीचे करके वो एरिया भी देखना था। यू शुड हैव सीन फॉर एनी इंजेक्शन साइट, वहाँ पे कोई बॉयल, कोई ट्रॉमा, आपकी स्पाइन, ठीक है ना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स पर मिसिंग। हमेशा याद रखो कि आगे की जो हमारी डिस्कशन होती है वो उस वक्त जल्दी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस वक्त आपका इनिशियल जो है वो किसी चीज़ को लीड कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप एग्जामिनर से कहेंगे कि मैंने BP इसलिए ऑफर किया कि मेरा CVA मेरे जहन में था, तो CVA के लिए मोनोप्लीजिया, एक लिम्ब का मोनोप्लीजिया, बच्चा एक्टिव हो रहा है, बड़ी से खेल रहा है और की बातें कर रहा है, लग रहा है कि क्या CVA की वजह से उसको मोनोप्लीजिया। और इसके अंदर अगर डायग्नोसिस आपने अगर पोलियो भी रखते हैं तो मैं उसके बाद तो डिस्कस भी करूँगी। जैसे कह रहे हैं कि दोनों तरफ हमें रिफ्लेक्सेस ना इतनी दूर से भी एलिसिट होते नज़र आ रहे हैं, उसके पास तो पास जाने की जरूरत रहती है, ठीक है। कोशिश किया कि अपनी स्कीम पूरी करें। रेडियल नर्व्स आपके पास टाइम से आप एग्जामिन कर सकते थे, ठीक है। बाकी वैसा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिस करो। रोटेशन हो गई है न्यूरोलॉजी में, चल रही है। और ये कि एक और पॉइंट कि पोलियोमाइलाइटिस में रिफ्लेक्सेस एक्यूट स्टेट में एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। आपको भी कुछ कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, अगर आपने स्कीम को फॉलो किया होता है तो बस टैब करके सब कुछ उसके बाद आपने कुछ स्लैब कर रहा था, बिल्कुल तोड़ लगे, आप लोग बिल्कुल जल्दी। और ये कि थोड़ा सा जब एग्जामिनेशन जब कमांड देता है तो एग्जाम में हमारे माइंड में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अगर लो लिम्ब कह रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग, तो अगर हम लो लिम्ब कह रहे तो माइंड में क्या क्या आता है, क्या क्या हो सकता है? ठीक है, लेस लाइकली है कि बच्चे को CVA हो और एग्जामिनर पे से बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी माइंड में। क्यों भाई सही बनी सकता? Dr. Abdul Hadi, he's 10 years old child who presented with लेकिन ये स्टेज लाना से
difficulty in performing the daily routine activity. Do the general physical and well for the past few days. Do the general physical and well. कमांड क्या थी इसकी? फिजिकली एंड एलिमेंट एक्टिविटी जो है ना
Then I have examined a 13-year-old patient who is conscious cooperative during my examination, having in no obvious respiratory distress, having obvious coliform movements, which are elicited in the form of the darting tongue, the pronator sign, the hand sign, and the Mesmer sign is also positive. The child has a pulse rate of 80 per minute. There is no jointus, no peripheral stigmata of the chronic liver disease. Child has no alopecia, no ulcers, and I couldn't elicit any rash on the body. There is no ascites, no clubbing. Heart sounds are normal, and child is able to walk with difficulty and hold a pen with his hand, but there is difficulty in eliciting movements of the body. Okay, any other thing you want to check in this patient? What about the tone on the reflexes? What about the gait? Child is having difficulty in walking. The coliform movement, so that's why the gait is disturbed. What about the cranial nerves? What about the cerebellar signs? Is there any ataxia in this child? Child is having difficulty in walking. Okay. What are your differential diagnoses? First of all, I would like to rheumatic heart disease. On what basis? Chorea is most commonly associated with, is the most common cause of rheumatic heart disease. And second differential? Second differential would be Wilson's, due to Wilson's variant chorea. Although there are no diagnosis matter of How do you investigate? diagnosis, so I would like to do CBC, CRT, ECG, chest X-ray, the echography, cardiography. If it comes out negative, then I would like to work up for Wilson's. Okay. What is the cause of rheumatic heart disease? Of rheumatic chorea? The overactivity of the dopaminergic. Due to? What organism is responsible for causing the infection? Streptococcus. Okay. Then would you like to check something for the presence of streptococcus? Yes, protein and culture, Especially the throat swell. If the patient presents initially in the first 2 weeks, then it is very ideal to send the throat swab. Okay, how will you treat this patient? Most important is the reassurance. If the child is having significant chorea, then pharmacological treatment may be started in the form of diazepam. If patient doesn't respond to diazepam, then And then sodium valproate and phenobarbital ultimately follow that to last. okay, how will you counsel this patient? It is important to make sure that this will go away in most likely 3 to 6 months, and in some cases in a year or so. And then counseling and reassurance. If the daily routines are hampered, then Any prevention in this patient you would like to offer? most common is rheumatic disease, so I would like to start with prophylaxis. So what is the natural history of rheumatic chorea? If it remain untreated, or there is a delay in the diagnosis and treatment, what are the likely complications? Rheumatic relapse, Which may lead to? which may ultimately death of the patient. No, but prior to the death, what could be the event? Heart failure. Heart failure, or? So did this actually in having this abnormal movements, or actually he has signs of rheumatic recurrence or
actual rheumatic disease? At present, I could not find any sign of weakness. Did you examine his heart thoroughly? No, I just auscultated the heart and the echo. Where it was? He was in the fifth intercostal just 1 centimeter lateral to the left. Any added sound? And also there was no added. No added sound. Okay. And child was not in failure. No, the child was not in So then would you label him as a case of rheumatic heart disease or rheumatic chorea? as rheumatic chorea. But you said in your initial description, you said rheumatic heart disease. Okay. So, what is the underlying reason for this problem? I mean, rheumatic chorea. Which is autoimmune mediated. Immune mediated. Pathophysiology of the disease. किसी वायरस से होती है या इम्यून सिस्टम है या स्ट्रेप्टोकोकस. Can we prevent this? Yes, sir. Primary prophylaxis. वो क्या? So amoxicillin during the first 10 नहीं, days. वो तो ट्रीटमेंट है ना. I am asking about prevention. Can we prevent this disease? Or more direct question, is there any vaccine available for streptococcus? No idea. Anybody from the residents? Available है, सारे कह रहे हैं. कौन सी है? ये तो और क्वेश्चन तो फिर बेसिक नीचे आ जाएगा ना. हर क्वेश्चन के साथ हम फैसला करते हैं अब ऊपर जाना है या नीचे जाना है. So tell me the vaccine protocol which is approved in the EPI in Pakistan at the moment. I mean at present. क्या है? The at At birth. polio vaccine, BCG vaccine, Hep B. उसके बाद आगे चलते जाएं. ये तो पहले वाली है then at 6 weeks, 10 weeks, and 14 weeks. We बीटा give, एम्ब्रोडेगनी pentavalent, Which includes DPT, then हैप्पी influenza. पढ़ने की जरूरत है. You did well in your examination. ठीक है, you did well. Examination technique was fairly reasonable, but these are the fundamentals. आपको वैक्सीन्स का तो पता होना चाहिए ना. You're a future pediatrician. आपने कल को सारी लगानी भी है. आज आपको पता भी नहीं है. हाँ? लगती है इस वक्त EPA में शामिल है. कब लगती है? 6 and 14. क्या नाम है उसका? कमर्शियल नाम क्या है? जिस तरह पेंटावेलेंट है एक नाम, उसमें 5 होते हैं. प्रीविनार, हाँ, प्रविनार. चलो अभी ये नहीं मैं पूछता कितने वेलेंट होती है, वो सारी उसकी ज्यादा डिटेल है. उसके अलावा और बताते जाए और कौन सी वैक्सीन है जो EPA में शामिल है? Then I had 9 months measles, and then at 1 year of age, the booster dose called. But if it is excluded, then मीजल्स का 1 शॉट है, 2 शॉट है? 9 and ये सारे 2 कह रहे हैं. 9 and 9 and 15. और पोलियो कितनी दफा है? 3 times. ओरल है, इंजेक्टेबल है? Oral EPA. इंजेक्टेबल है या नहीं है? It is present, but EPA. हम तो EPA की बात उनसे सुन रहे थे कि सारे शोर मचा रहे हैं नीचे से. ये पढ़े जाके आज या 2-4 दिन के लिए उधर चले जाएं. आउटडोर में एक कमरा है, वहां पे लगते हैं. हाँ. देखिए ना, फिर यही वो जो शुरू में मैं बात बता रहा था कि फंडामेंटल चीज़ है. आपको एग्जैक्ट एग्जाम में वैक्सीनेशन की ABC भी ना आती हो तो हाउ कैन वन पास यू इन दैट पर्टिकुलर शॉर्ट केस, चाहे वो रोमेटिक कोरिया का हो. अगर बात घूमती घूमती वैक्सीन पे चली गई तो मुश्किल हो जाएगी ना. और ये टोक्स का स्टेशन तो बासानी बन सकता है. एक क्वेश्चन है, अभी 2 मिनट बाकी हैं. इफ यू कम अक्रॉस अ चाइल्ड हु इज 7 years of age and yet have no vaccination, how will you draw or
make a plan for his vaccination. 7-year-old unvaccinated child. सबसे पहले क्या लगाएंगे, नेक्स्ट विजिट कब बुलाएंगे, इसके लिए पहले तो आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए. उसके बाद आप फिर सारा कुछ एक ही दिन तो नहीं, अब क्योंकि उसको टाइम तो गुजर गया है, क्या उसको लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए. पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं. सबसे पहले टीएसए जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये रिटर्न में भी आ सकता है, टॉक्स में भी आ सकता है. आता है ना? हाँ, एग्जैक्टली. देखिए ना, इस वक्त वैक्सीनेशन में बड़ी डिबेट चल रही है. पोलियो जिसके बारे में फ्यू लॉन्ग शॉर्ट केस बैक में नहीं यहाँ पे ही कहा था कि अब ऑलमोस्ट वी नेवर सी अ चाइल्ड विद पोलियो, लेकिन अब फिर बहुत सारे इस 2019 में 30-35 केस पाकिस्तान में फिर कंफर्म हो गए अनफॉर्चुनेटली. तो ये पोलियो फिर एक आ गया हमारे पास, रिसर्जेंस आ गई. एनीवे, सो just to wind up the session, any question from the residents regarding these 3 short cases or in general? देखिए, वैक्सीनेशन कोई भी हम देते हैं ना, वो हम डिजीज के लिए नहीं देते. वो हम किसके लिए देते हैं? वो उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ होती है, और वो ऑर्गेनिज्म जितना कुछ भी कर रहा होता है उस सब के अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन देती है. तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीनेशन है, विच इज करंटली जो है वो 13 वेरिएंट है. इसका मतलब है कि उसके जो 13 स्ट्रेन्स हैं उस वैक्सीनेशन के अंदर, उन 13 स्ट्रेन्स के खिलाफ वो प्रोटेक्शन देती है, और उसका एक ग्रेजुअली जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है वो कम हो रही होती है. तो वो बाद दफ़ा लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमने तो देखे टीके भी लगवाए थे, फिर इसको ये हो गया वो हो गया. इसका मतलब है टीकों का कोई फ़ायदा नहीं होता. तो यू शुड बी एबल टू कन्विंस देम कि एक तो ये कि कोई भी वैक्सीनेशन 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रही होती. रीज़न बीइंग, साइंटिफिकली आपको पहले पता होना चाहिए ना कि अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी है तो उसके 50 स्ट्रेन्स हैं, आप सिर्फ 13 को प्रिवेंट कर रहे हैं. और स्टडीज हैव शोन, जब पहले 7 वेरिएंट आई थी 2006-7 में, तो बाकी के जो 5-6 थे वो बढ़ गए थे. जो वहाँ तो सीरोटाइप तक आप कल्चर करने के बाद इवन सीरोटाइप भी डिटरमिन करते हैं इन द वेस्ट. तो पता चला कि वो 7 कवर हुए, ये 6-7 बढ़ गए. उन्होंने वो 6-7 भी शामिल कर दिया, अब 13 की बन गई, फिर 10 की बनी, और अब 13 की अवेलेबल है. अब 13 में खासी हद तक उसमें कमी आई है, बट स्टिल देयर आर सम स्ट्रेन जो जिनमें इन्फेक्शन हो रहा है. हो सकता है और 2-4 सालों में ये 15 वेरिएंट और 20 वेरिएंट वैक्सीन बन जाए. तो बेसिकली इट्स वैक्सीन आर मेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म, नॉट फॉर द डिजीज, बट डेफिनेटली वो इसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन देती है. जी आप तो यस, देखिए एटैक्सिया की कई वजूहात होती हैं. एटैक्सिया कुड बी सेंट्रल बिकॉज ऑफ द ब्रेन, या लाइक एक्यूट सेरेब्रल एटैक्सिया. एटैक्सिया कुड बी पेरिफेरल लाइक मायोपैथी, और बेसिकली वो भी एटैक्सिक होगा ना. जिसको मायोपैथी न्यूरोपैथी को होगी उसको भी चलने में मुश्किल हो सकती है, उसको भी हो सकती है. या पोस्ट एनसेफेलिटिक है वो भी हो सकता है, या ड्रग इंड्यूस्ड है वो भी हो सकता है. अब ड्रग इंड्यूस्ड अगेन फिर सेंट्रल होगा. एक है जो बच्चा इस तरह का है जिसमें बेसिकली एबनॉर्मल मूवमेंट्स हैं, और वो मूवमेंट्स की वजह से हिल बहुत ज़्यादा रहा है एंड सीम्स लाइक ही इज लिटिल एटैक्सिक, लेकिन अदरवाइज उसमें न्यूरोलॉजिकली रिफ्लेक्सेस ठीक होंगी या कम होंगी, रिस्क नहीं होगी. ठीक है ना. लेकिन अटैक्सिया उसमें, या वो अटैक्सिक बिहेव कर सकता है. फ्रैंकली उसको हम अटैक्सिक नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि वो मूव ऐसे कर रहा था, आपने देखा था कभी आगे हो रहा है कभी पीछे हो रहा है. फिर इन बच्चों में इमोशनल लाइबिलिटी भी होती है, वो भी डॉक्टर साहब ने बहुत ना कमेंट किया ना पिक किया, और वो लग रहा था कि उसके अंदर था. तो इसमें हो सकता है. इसी तरीके से जो अपर मोटर न्यूरॉन वाली होती हैं लाइक हाइड्रोसेफलस है, वो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टोन उसकी भी गेट डिफिकल्टी हो सकती है, वो भी एटैक्सिया हो सकता है. इसी तरीके से जिसको ऑल्टर्ड सेंसोरियम है, चाहे वो नॉन कन्वल्सिव स्टेटस है, चाहे वो पोस्ट एनसेफेलिटिक है, या एनी अदर रीजन है जिसमें ब्रेन फंक्शन ऑल्टर है, वो भी एटैक्सिक हो सकता है. तो काफ़ी कंडीशन के अंदर हो सकता है. बिकॉज अगर एक मूवमेंट डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है ना, तो आपने सारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स के लिए देखना होता है. एटेक्सिया, कोरिया, एक्सिटोसिस, डिस्टोनिया, ये सारे एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं. जैसे एटेक्सिया सेंसिटिव फीवर है, उसमें कोरिया भी समटाइम्स आ जाता है. विल्सन्स डिजीज डिस्टोनिया के प्रेजेंट करे, उसमें भी कोरिया आ सकता है. तो मेरा क्वेश्चनिंग करने का मतलब ये था कि उनको पता चल जाए कि मैंने क्या मिस्टेक की है, कि एक मूवमेंट डिसऑर्डर जब प्रेजेंट हो तो आपने बाकी मूवमेंट डिसऑर्डर्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं.
हाँ हाँ नहीं किया उन्होंने, ये तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने कमेंट नहीं किया, इनको करना चाहिए। नहीं इंटरेक्ट तो किया है, लेकिन इन्होंने चूंकि इन्होंने सोचा नहीं, इन्होंने पिक नहीं किया, इनको पता नहीं। देखिए ना कई लेवल है ना, आपको पता ही नहीं है तो आपने देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं था कि सडन कोरिया में इमोशनल लाइबिलिटी इज अ कंपोनेंट। वो नज़र भी आ रही है, बच्चा कभी ऊंची बोल रहा है, कभी हल्का बोल रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है। सो देयर आर फ्यू थिंग विच आर वेरी क्लियर। नंबर 1 एबनॉर्मल मूवमेंट्स, नंबर 2 इमोशनल लाइबिलिटी। उसके बाद आपने मैनूवर्स ठीक किए, सो योर एग्जामिनेशन वाज रीजनेबली वेल, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें गलत थी। पर्टिकुलरली अब आखिर में तो डिजास्टर ही कर दिया ना वैक्सीनेशन वाले क्वेश्चन में, तो वो तो आपने जो हाँ क्या ऑफ कोर्स देखिए आपको एक चीज, हाँ आपने एक चीज की है और आपने कमेंट नहीं की, एंड इट इज इम्पोर्टेंट। आपने एलोपेशिया बता दिया विच मे नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एलोपेशिया क्यों पूछते हैं हम, पहले में भी किसी ने बोला था SLE के लिए। SLE इज नॉट वेरी कॉमन डिजीज। देखिए चिल्ड्रन अस्पताल में बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाती हैं, लेकिन बात हमने देखनी होती है कि वो एपिडेमियोलॉजिकली कितनी कॉमन है, कंट्री वाइज या इन जनरल कितनी कॉमन है। न्यूरोलॉजी में आप कहें कि जी GBS इज वेरी कॉमन, हम तकरीबन 1 GBS हर रोज ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि GBS बहुत कॉमन है? नहीं, यहाँ पूल हो रहे हैं पेशेंट, हम 10 दिन बाद एक SSP ले रहे हैं, ये बहुत कॉमन है? नहीं। तो आपने तो एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखना है ना कि हाउ कॉमन दैट डिजीज इज। SLE इज नॉट अ वेरी कॉमन डिजीज। तो आपको जबकि आप सडन कोरिया डिस्क्राइब कर रहे हैं, इमोशनल लाइबिलिटी क्लियरली नजर आ रही है, डिस्क्राइब नहीं कर रहे, तो इसका मतलब एग्जामिनर ये लेगा कि आपको पता ही नहीं है। एग्जामिनर ने आपको आपके बोलने से असेस करना है, ना कि आपके ज़हन में क्या है वो असेस करना है। सेकंड थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है कि हाउ यू बिहेव, विच इज़ बॉडी लैंग्वेज। मैं हमेशा से कहता होता हूँ कि ठीक है नॉलेज भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिस फंडामेंटल्स है फॉर एनी एग्जामिनेशन। आपने डिस्क्रिप्शन के दौरान यहाँ पे शायला बात करी है या मैं करूँगा, आपने 6 बार उधर देखा है, अब ये 5 मिनट इधर देखें, वो जिसको कहते हैं ना एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के बात, विच गिव्स एन इम्प्रेशन कि यू आर कॉन्फिडेंट। नॉलेज तो जो है बस वो तो वही रहना है ना, लेकिन वो जो चीज़ें हैं उनको ओवरकम करें। अगर आपका अपने हार्ट रेट पे आप कमेंट कर रहे थे, अपना हार्ट रेट उस वक्त कितना था, इट सीम्स कि यू वर लिटिल ब्रेथलेस कुछ। हाँ तो ये सब चीज़ें ये रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं कि आप नर्वस हैं, आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, एक नेचुरल होती है, आई एग्री, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने बहुत सारे शॉर्ट केस किए हैं, आपने ये केस पहली बार नहीं देखा, तो नेचुरली वो आपका कॉन्फिडेंट डिफरेंट होगा इन कंट्रास्ट जिसमें आपको एक लग रहा है पता नहीं है क्या चीज़ आ गई है। तो जितने ज़्यादा शॉर्ट केस करेंगे, जितने ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे इन शॉर्ट, उतना आपका ये जो लेवल है मज़ीद इम्प्रूव होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि यू डिड वेल इन द इनिशियल examination. Thank you very much. Any other questions from the house? Chronic GBS. तो जी ये लिखा हुआ है किताब में chronic GBS? नहीं, एक तो देखिए, एक तो है टाइम लाइन। नहीं, पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, चूंकि लेटेस्ट एडिशन मुख्तलिफ किताबों के आप लोग माशाल्लाह पढ़ते रहते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या chronic GBS की टर्म लिखी हुई है? हाँ देखिए वो और चीज़ है ना, यही तो मैं वजाहत चाह रहा हूँ ना कि एक्यूट, देखिए क्रोनिसिटी हम वहाँ पे जनरली टर्म यूज करते हैं जहाँ पे एक्यूट होता है। क्या एक्यूट GBS की टर्म है कहीं पे? कहीं नहीं है। एक्यूट रीनल फेलियर है तो दैट्स वाई क्रोनिक रीनल फेलियर भी है। एक्यूट हेपेटाइटिस है, क्रोनिक हेपेटाइटिस भी है। तो क्या एक्यूट GBS होता है? नहीं है। GBS इज यार वो तो उसकी फर्दर सब डिवीजन है ना। आप बेसिकली एक्यूट डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स या एक्यूट डिसऑर्डर्स सारे ही हैं जो विद इन डेज हो जाते हैं, 1-2 दिन के अंदर। इसकी फर्दर प्रसीन भी कुछ साइंसदानों ने निकाली होती है, हाइपर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट, ठीक है ना, इनके 2 घंटे में हो गया, 8-10 घंटों में हुआ। ये डेफिनेशन जो है ये आर्बिट्रेरी डेफिनेशन है। किसी भी किताब में या किसी भी उसके अंदर कोई कट ऑफ लाइन नहीं है कि 3 घंटे से पहले हाइपर एक्यूट है, 3 से 12 तक एक्यूट है, उसके बाद सब एक्यूट है। सेम इज जनरली स्टैंडर्ड डेफिनेशन लाइक CKD क्रोनिक लिवर डिजीज है, ये रीनल फेलियर है, जनरली 3 महीने की आर्बिट्रेरी है। उसके बाद
रेफरिंग टू योर क्वेश्चन, जीबीएस में एक बच्चा जो ठीक नहीं हो रहा, हमने नेचुरल हिस्ट्री की बात की थी। नेचुरल हिस्ट्री यह है कि 4 हफ्ते के बाद वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं विद ट्रीटमेंट मोस्टली, बट इवन विदाउट ट्रीटमेंट भी जो माइनर है जिनमें हम नहीं देते बहुत सारों को, वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज नेचुरल हिस्ट्री, क्योंकि दिस इज एन इम्यून मीडिएटेड पोस्ट वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन अगर अनट्रीटेड भी रहे तो वो ठीक हो जाते हैं, यानी एंसेफेलाइटिस ठीक हो सकता है। हमें या हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सब एक्यूट एंसेफेलाइटिस होता है और हमें नहीं पता होता, और वो चूंकि सेल्फ लिमिटिंग है, खुद बहुत ठीक हो जाता है। दोज हु प्रेजेंटेड विद माइनर हेडेक एंड लिटिल इरिटेशन एंड बिजार बिहेवियर, दैट इज इनफैक्ट एंसेफेलाइटिस। हम एंसेफेलाइटिस वो कहते हैं जो 3/15 और स्टेटस एपिलेप्टिकस के साथ आता है, और उसको एसाइक्लोविर देते हैं, वेदर वो इंडिकेटेड है या नहीं, क्योंकि एसाइक्लोविर इज ओनली मेंट फॉर हर्पीस वायरसेस, क्योंकि वायरल कल्चर नहीं है सारा कुछ। तो बात यह है कि उसके बाद जो क्रोनिसिटी में एंटर वो बच्चे हो जाते हैं जो इस टाइम बार को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप इम्प्रूवमेंट के 2 महीने डाल दें तो 3 महीने आप उसको कह सकते हैं कि वो क्रोनिसिटी में चले गए, वो एक्यूट डीमाइलिनेटिक या CIDP में चले जाते हैं। इन दोनों केसेस में चूंकि ये होता बहरहाल इम्यून मीडिएटेड है, दवाइयाँ वुड रमेन सेम, IVIG और प्लाज्मा एक्सचेंज और मिथाइल प्रेडिसोलोन और रिटुक्सीमैब से पहले भी कोई नाम ले लो ना, कौन किसने लिया? एजाथायोप्रिन। इस वक्त एजाथायोप्रिन ओरल जो है उसका रोल इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर जो पर्टिकुलरली इन पीडियाट्रिक्स है, वैसे तो साइक्लोफॉस्फामाइड भी है और रिटुक्सीमैब के नए रिजल्ट भी आना शुरू हो गए, माइक्रोफिनोलेट मोफिटल वगैरह भी, लेकिन बच्चों में जो ज़्यादा अभी जो डाटा अवेलेबल है वो है एजाथायोप्रिन ओरल एंड रिटुक्सीमैब एक्यूट फेज के अंदर। एनी अदर क्वेश्चन? वो आपने पूछा था कि नेचुरल कोर्स ऑफ GBS, तो उन्होंने CSF हमने फर्स्ट वीक की बात करना है, और जो उसकी EMG और नर्व प्रोडक्शन है वो बुक्स में लिखा हुआ कि आप 21st डे में करें। इसके पीछे बैकग्राउंड है, इसके पीछे बैकग्राउंड रीजन ये कि जो देखिए जो CSF है, एल्बुमिनल साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन आती है, उसको भी आने में टाइम लगता है। इवन हमने अपने वार्ड में जो केसेस किए हैं TBM के, इनिशियली हम फर्स्ट वीक में जब उनका CSF करते हैं बिल्कुल नॉर्मल होता है, और पेशेंट का जो बाकी TBM के जो सारे फीचर्स हैं और उसकी बाकी सारी फाइंडिंग्स है वो टोटली वो TBM बता रहे थे। और जब सेकंड थर्ड वीक में CSF करते हैं तो प्रोटीन्स रेस आती हैं, उनके 4 वीक में करते हैं तो और स्काई हाई होती हैं, तो उसको कुछ टाइम लगता है आपके इम्यून मेडिएटेड चीज़ों को आने में। दैट इज़ द रीज़न कि हम CSF अगर फर्स्ट वीक में करेंगे तो उसकी प्रोटीन्स रेस नहीं आएंगी, सेकंड वीक के एंड पे करते हैं। दूसरा जो EMG नर्व कंडक्शंस की जहाँ तक बात है, तो आपके जैसे अगर हम क्लिनिकली भी असेस करते हैं कि एक्सोनल और डीमाइलिनेटिंग वेराइटीज है, इन केस ऑफ डीमाइलिनेटिंग वेराइटी उसको आने में 2 वीक्स लगते हैं। तो आपकी जो EMG फाइंडिंग्स हैं, डिजीज़ बच्चे में आएगी तो आपके पास नर्व कंडक्शंस में भी चीज़ें आएंगी ना, तो वो जो रिपोर्ट होती है वो आपको ये नहीं बता रही होती कि ये डीमाइलिनेटिंग की वैल्यूज़ क्या है, वो सिर्फ ये बता रही होती है कि देयर इज सम न्यूरोपैथी। तो फिर उसमें हमें फ़ायदा नहीं है ना कि हमें टाइप भी नहीं पता चल रही, उसकी सेवेरिटी भी नहीं पता चल रही, उसका एक्सटेंट भी नहीं पता चल रहा, तो हम पेशेंट को कैसे बताएंगे उसकी रिकवरी कैसे है, और IVIG का कैसे डिसाइड करेंगे। इन केस ऑफ रैपिड प्रोग्रेशन, अगर बच्चे को विदिन 24 आवर प्रोग्रेशन हो रही है, एक्सोनल हमें लग रहा है, तो हम उसकी फ़ौरन EMG करते हैं। उस केस में हमें एम्पलीट्यूड स्लो मिलते हैं, हमें फ़ौरन पता चल जाता है ये एक्सोनल है, ये रैपिडली प्रोग्रेसिव है, इसको मैकेनिकल वेंटिलेट करना पड़ेगा, IVIG देने पड़ेगा। बेसिकली एक टर्म हम यूज करते हैं, डिजीज इन एवोल्यूशन। डिजीज इन एवोल्यूशन में चेंज आती रहती है, चाहे वो ये न्यूरोमस्कुलर इम्यून मेडिएटेड हो या बहुत सारी डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं। वो आज करेंगे।